ధ్యాన మహాయాగానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ హైదరాబాద్ తరఫున మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమము ఇంత గొప్పగా జరగడానికి కారణము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్లో ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మాస్టర్లందరి ద్వారానే ఈ యొక్క కార్యక్రమము మన అందరికీ పత్రిజీ గారు ఇచ్చిన ప్రేమ. ఇట్స్ ఎ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఫర్ పత్రి సార్. ఎస్ సార్ నో? సో క్లాప్స్ దద్దరిల్లాలి. పత్రిజీ ధ్యాన మహాయాగం అని పేరు వల్లనే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. పత్రిజీని ప్రేమించే ప్రతి చిన్న పెద్ద ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని 21వ తారీఖు నుంచే మేము మామూలుగా 24, 25 ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. ఇంత జనాల్ని 21వ తారీఖు నుంచే దీన్ని ఇంత ముమ్మరంగా ఇంతమంది రావడం అనేది అందరి పట్ల పత్రిజీ చూపించిన ప్రేమ. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ సందర్భంగా పత్రిజీ గారు నన్ను ఎంచుకున్నారేమో భారతదేశంలో నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతను నేను నిర్వహించడానికి. ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మొదలుకొని వెస్ట్ బెంగాల్, ఇతరతర ప్రాంతాలన్నీ, బీహార్, ఒడిస్సా ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ సార్ ఎప్పుడు ఒక మాట అనేవారు, నేను కొరమండల్ ఫర్టిలైజర్స్లో పనిచేసిన, నువ్వు ఫార్మాస్యూటికల్లో పనిచేసిన, మనం ఇంటి దగ్గర 3 రోజులు మాత్రమే ఉండాలి, 27 రోజులు రోడ్ల మీదనే ఉండాలని చెప్పేవారు. సో అందుకనే నేను 27 రోజులు ఉండట్లేదే కానీ 20 రోజులు రోడ్ల మీద ఉంటున్నాను. సో అందుకు అందరి మాస్టర్స్ సహకారం ఉండాలి ప్రతి స్టేట్లో. అలాగే వీళ్ళందరితో పాటు సార్ ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, బీ యువర్ సెల్ఫ్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ అని. దీని ద్వారా భారతదేశం అంతా ఫిజికల్ అంటే పిఎంసి మీడియాస్ ఉన్నాయి మనకి, ఫిజికల్ లెవెల్లో తిరుగుతూ ప్రచారం చేసే వాళ్ళకి సహాయ సహకారం అందించడం కోసము, లిటరేచర్స్ ఇవ్వడం కోసము, పాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసము. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మన మహబూబ్ నగరు, మన కర్నూలు ఎలా అయితే చిన్న చిన్న ప్రాంతాలుగా ఉండేవో ఇప్పుడు ఇట్స్ వెల్ డెవలప్డ్ ఏరియాస్. బట్ అలాంటి ఏరియాసే ఒప్పచెప్పారు సార్ నాకు. ఛత్తీస్గఢ్, బీహారు, జార్ఖండ్ అండ్ 7 సిస్టర్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఈ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ధ్యానం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటారు. మనము శాకాహార భారత్ అంటున్నాము. శాకాహార భారత్ కావాలంటే దానికోసం మనం పని చేయాలా వద్దా? ఎలా చేయాలి? మనం వెళ్ళి తెలుగులో చెప్తే వింటారా? కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని అక్కడ మాస్టర్స్ని తయారు చేసుకొని మనం పని చేయాలి. అందుకు సహకరిస్తున్న వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. అండ్ జోర్బాదా బుద్ధ నుంచి రోజ్ చేస్తుంది. ఈరోజు రోజ్ ఇక్కడ లేదు. జ్ఞాన్ భారత్ నుంచి నీతా భోజ్వాని, యాక్చువల్లీ ఈరోజు స్లాట్ ఛత్తీస్గఢ్ స్లాట్. నీతా భోజ్వాని అండ్ మమతా ఆ టీం, మనమందరం కూడా ఫస్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ టీంకి క్లాప్స్ చేద్దాం. నా నెక్స్ట్ ఒడిస్సాలో మొన్న మీరు డ్యాన్స్ చూశారు, ఇష్మిత, వీళ్ళు కాకుండా కాంతా ఆంటీ అండ్ నీలం ఖండోయి అండ్ షిప్రా, ఈ టీం అంతా చేస్తున్నారు అద్భుతమైన ధ్యాన ప్రచారం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వింగ్లో ప్రావీణ్యత సాధించుంటారు. వాళ్ళు వాళ్ళ వింగ్స్లో చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు. ఒకరు మీడియా వింగ్ చేసవచ్చు, ఒకరు బ్రోచర్స్ వింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకొకరు ఫిజికల్గా వెళ్ళి ప్రచారం చేయొచ్చు, ఇంకరు ఇంట్లో కూర్చొని థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. సార్ చెప్తారు కదా, తన్ మన్ ధన్, ఈ 3 రకాలుగా ధ్యాన ప్రచారం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మాస్టర్స్ ద్వారా మనం విందాము. మనం ముందుగా సుష్మిత గారి ద్వారా విందాము. ఆవిడ భోజ్పురి లాంగ్వేజ్లో ధ్యానం ఎలా చేయాలి, ధ్యానం వల్ల లాభాలు వీడియోస్ చేస్తూ, షీ స్టేజ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని ఆ వీడియోస్ अपलोड చేస్తూ ఆవిడ వర్క్ చేస్తున్నారు. हम अब इनसे सुनते हैं कि भोजपुरी लैंग्वेज में ध्यान कैसे करना है. भोजपुरी लैंग्वेज में बताइए आप. नमस्कारम, मैं सुष्मिता केसरी. मैंने ध्यान में आया 2020 में. मैंने ध्यान करना सीखा. पति सर से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा. और मेरी टीम रिंकू मैम, माधवी मैम, सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा ध्यान प्रचार करने में. मैं पहले बंगाली में ध्यान करना चालू की. शहर के जो बुक है सांस ज्योति और ध्यान उपहार, दोनों मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, लगभग हो चुकी है. और बंगाली में ही मैं ध्यान का प्रचार कर रही हूँ, सेशन लेती हूँ. इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. अभी मैं भोजपुरी में रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में देती हूँ. भोजपुरी में मैं बोलूँ?
ध्यान कैसे करना है, ध्यान कैसे करम, उसके बारे में हम आप लोग से बताओ तनी। पहले आंख बंद कर लो, करम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के अपनी गोद में रख लें, दोनों पाँव को क्रॉस कर लें और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखम और कुछ भी ना करम। इस तरह से मैं भोजपुरी में बोल रही हूँ, अभी आप लोग के सामने मेरी आ नहीं रही है, सॉरी। थैंक यू। और मैं इसी तरह अपनी टीम मेंबर के साथ ध्यान प्रचार और ध्यान के काम कर रही हूँ। और मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो सर को बहुत पसंद थी। सॉन्ग लास्ट गाना बाद में सुनते हैं अपन, क्योंकि स्लॉट का टाइम कम है, दूसरा टीम रेडी है ऑलरेडी, वी आर 40 मिनट्स लेट स्टेज, सो नाउ विल शिखा। अहम ब्रह्मास्मि और इस शरीर का नाम शिखा जैन है। ध्यान से पहले भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत संतोषी, एकदम सिंपल। मेरा ध्यान में आने का कोई रीज़न नहीं था, कोई किक पॉइंट नहीं था। बस मैं जैन हूँ तो अपने गुरु महाराज लोगों से प्रवचन में ध्यान, मोक्ष, जन्म मरण का अंत, ये सब सुनती थी। तो किसी ग्रुप से मुझे पता चला कि वहाँ ध्यान होता है, तो बस उत्सुकतावश मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, कोई रीज़न नहीं था। वो तो अब समझ में आया कि वो जो मैंने यूं ही अनजान में ज्वाइन किया, मेरा सच में वही रास्ता था। मैं पहले से प्रोग्राम बना कर आई थी। इसमें आने के बाद अब मुझे अपने लाइफ का ट्रू पर्पस पता चल रहा है, मैं क्यों हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि संसार में आने के बाद बच्चे हर एक चीज़ सीखते हैं, उठना, बैठना, दूसरों से बात करना, समाज में रहना, पढ़ना, खाना बनाना, सब चीज़। वैसे ही मैं सर से मिलने के बाद हर एक चीज़ सही तरीके में कैसे करते हैं वो चीज़ सीखी हूँ। मेरा सही शिक्षा सच में सर से मिलने के बाद ही हुआ है। अभी तक तो ध्यान में आने से पहले बस चल रही थी, जैसा दूसरों ने बताया वैसा कर रही थी, पर अब सच में अपनी मर्जी से चल रही हूँ, अपने लिए खुद क्रिएट कर रही हूँ। जो बोलते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, वो अब सच में जी रही हूँ और पल पल अपने लिए, अपने सोल ग्रोथ के लिए ही जीना चाहती हूँ। ध्यान में आने के बाद मेरा इस प्यारे से ग्रुप से जुड़ना हुआ, बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट से जुड़ना हुआ, जहाँ हमने सीखा बाहर कोई गुरु है ही नहीं, आपका गुरु आप अपने साथ लेकर के आए हैं। दैट इज़ योर ब्रेथ, जिसकी वजह से ही आप शिव है, वरना हम सब के सिवा और कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हर पल, हर मोमेंट, एवरी टाइम, एवरीवेयर, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। सर के अब्सेंस में मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि सर फिजिकली नहीं है। अब हमें ये पता चला कि सर से ध्यान में आने के बाद जो कुछ भी सीखा है, अब उसे अप्लाई करना है। अब हमें सच में आगे बढ़ने का मौका मिला है। जो हमने सीखा है उसे दुनिया के हर एक लोगों तक, कोई जात, कोई धर्म नहीं, कोई देश, कोई प्रांत नहीं, हर एक लोगों तक, हर एक लोगों तक हमें पहुंचाना है।
और बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट का यही एम है, आनापानासति मेडिटेशन एंड ओनली आनापानासति मेडिटेशन। थैंक यू फ्रेंड्स। शॉर्ट एंड स्वीट सीमा। आत्मवंदन। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा मदान, जो ये सब पीएचडी मेंबर के साथ हूँ, कलकत्ता के टीम के साथ। इन्हीं के साथ मेरा आत्म उन्नति बढ़ा है। और पत्री सर जब से मेरी लाइफ में आए हैं, हम लोगों की लाइफ को एकदम टोटली चेंज कर दिया है, पूरे अवेयर कर दिया है। कई कार्य हम सोचते थे सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस आ गया है। ये ध्यान के कारण ही संभव हुआ है फ्रेंड्स। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, उसका लक्ष्य क्या है, वो सिर्फ ये ध्यान के माध्यम से, आनापानासति के माध्यम से ही मुझे पता लगा है। पहले ऐसा नहीं भाव था। पहले लगता था सिर्फ घर बाहर गृहस्थी यही सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं, उसके साथ और भी सेवा कार्य करने आए हैं। हम सब एक हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और हम सबकी जो लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज का सब एरिया के अकॉर्डिंग चेंजेस आता है, लेकिन अंदर से सब एक ही परम आत्मा है। ये सर ने बताया और हमने महसूस भी किया अपनी सांसों के साथ जुड़कर फ्रेंड्स। तो ये जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तभी समझ पा सकते हैं कि हम सब एक हैं, और इसमें भाषा का बंधन भी नहीं रहता है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों को एकोमोडेशन की सेवा का मिला सौभाग्य कि हमको वहाँ पर बैठना है। वहाँ पर यहाँ की लैंग्वेज के लोगों के साथ किस तरह भावों के साथ उनके बातों को मैं समझ पा रही हूँ। विद इन 5 डेज में उनको थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ, और मैं अपनी भाषा को उन तक भावों के जरिए और बाय स्पीकिंग थोड़ा थोड़ा समझाकर एग्जैक्टली वो चीज़ को समझा पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा ये ट्रस्ट बना है, बी योरसेल्फ पिरामिड ट्रस्ट, तो इसमें भाषा कोई भी मायने नहीं रखती है। इसमें सब कोई ऐड हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक भाषा को लेकर नहीं, सब भाषाओं को लेकर ये एक है। जैसे ये भारत एक है, जैसे पत्री सर एक एक घर में जाकर इसको बढ़ाए हैं, हर भाषा के लोगों को यहाँ इकट्ठा किए हैं, उसी तरह हम सभी को हर भाषा में एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट एक कुटुंब के रूप में रहना है फ्रेंड्स। यही मेरा मानना है, यही पत्री सर का मानना है, इसलिए हम सभी यहाँ एक साथ हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट। सभी को आत्मबंधन। मैं सुनीता जैन। सिर्फ इतना सीखा ध्यान में, ध्यान करो और शाकाहार बनो। बस यही नारे को आगे लगाना है। सबको मिलकर ध्यान करेंगे और शाकाहार बनेंगे। थैंक यू। हमारा बंगाल टाइगर है ये, पत्री सर ने इनका नाम दिया है, रिंकू गुप्ता। इनसे सुनते हैं अपन। ఈవిడ పేరు రింకు గుప్తా. ఈవిడని సార్ బెంగాల్ టైగర్ అని అంటారు, ఆయన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తారు. సో ఈవిడ ద్వారా విందాం. नमस्कारम दोस्तों। एंड सबसे पहले मैं हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और चरण वंदन करती हूँ उनको। माधवी मैडम को कोटि कोटि धन्यवाद, एंड उनको भी मैं नमस्कार एंड उनके भी चरण वंदन करती हूँ कि आज उनके हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी की वजह से और माधवी मैम की वजह से हमारी कलकत्ता टीम बी योरसेल्फ पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट एकमात्र सिर्फ और सिर्फ पत्री जी के मिशन और पत्री जी के विज़न को आगे ले जाने के लिए बनी हुई है। उनका जो मिशन है, उनका जो विज़न है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। आनापानासति ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, स्पिरिचुअल साइंस, स्वाध्याय। तो फ्रेंड्स, हमारी जो टीम है माधवी मैडम के नेतृत्व में बनी है, इसमें हर स्टेट से मास्टर्स जुड़े हुए हैं जो अपनी अपने स्टेट में अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में कार्य कर रहे हैं प्रचार का। हमारी कोलकाता टीम में हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं, सुष्मिता
जो भोजपुरी में और बंगाली में काम कर रही हैं, ट्रांसलेशन का भी, सेशंस का भी। एंड शिखा जैन है जो झारखंड पीएमसी झारखंड चैनल हैंडल कर रही हैं एंड झारखंड में प्रचार प्रसार का कार्यभार संभाल रही हैं। एंड पीएमसी बिहार एंड पीएमसी बंगाली हमारी जो बंगाली टीम है, सपना तालुकदार, कमल पाल, सुष्मिता सेन, और भी मास्टर्स हैं, सुशीला मुखर्जी जो यहाँ आई हुई हैं बट अभी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, वो हैंडल कर रही हैं पीएमसी बंगाली चैनल को एंड बंगाली में प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। एंड इसके साथ ही हमारे जो मास्टर हैं सीमा मदान, वो पंजाबी भाषा में भी अपने पंजाब स्टेट में भी अपने जान पहचान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ध्यान प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्लस अपने एरिया में, हमारे कोलकाता एरिया में बजबज में इन्होंने सेंटर बनाया है, पिरामिड सेंटर। एंड सॉल्ट लेक में पिरामिड सेंटर है, कैलकाटा में सफारी पार्क में सदर्न एवेन्यू में पिरामिड सेंटर है हमारा, और हमारा एक परमानेंट सेंटर बनने जा रहा है कैलकाटा में बहुत ही जल्द जनवरी से, जहाँ पर मास्टर्स आ सकते हैं एनी टाइम। वहाँ पर हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, बुक्स वहाँ पर लाइब्रेरी बनाएंगे, प्लस वहाँ पर ध्यान का एक सेंटर खोलेंगे जहाँ पर हर भाषाओं में हम लोगों को ध्यान सिखाएंगे फ्रेंड्स। एंड इसके साथ ही सर ने ये कार्यभार हमें, जो अपने मिशन और विज़न के लिए हमें चुना है, हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि सर ने हमें चुना। तो इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूँ, धन्यवाद भी बहुत कम, बहुत ही छोटा शब्द है फ्रेंड्स। सुनीता जैन जी हैं जो हमारे टीम में हैं, ये भी सेशंस में ध्यान प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्लस मंजू डोकानिया जी जो अभी मौजूद नहीं हैं, जो ऑलरेडी कल ही जा चुकी हैं। ईशा गोयल जो बच्चों को स्कूल्स में ध्यान सिखा रही हैं। शिखा जैन भी बच्चों को स्कूल्स में जाकर ध्यान सिखा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय है सॉल्ट लेक में, जिसमें ईशा गोयल जा रही हैं हर वीक ध्यान सिखाने। वहाँ एवरीडे हमें अभी परमिशन नहीं मिली है, पर एवरी वीक वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पे हज़ारों बच्चे एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। प्लस शिखा जैन काकुड़गाछी में स्कूल में इसने कार्यभार संभाला है बच्चों को ध्यान सिखाने का। तो इस तरह से एक एक मास्टर्स अब लगे हुए हैं कि स्कूल में पहुँचे और बच्चों को ध्यान सिखाएं। हमारा लक्ष्य यही है एज अ पीएचडी टीम मेंबर कि हर स्कूल में जितना हो सके हम बच्चों तक पहुँचे और बच्चों को ध्यान सिखाएं दोस्तों, क्योंकि बच्चे ही आगे फ्यूचर हमारे इस देश के भविष्य हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें ध्यान सिखाना चाहिए। तो हम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी स्कूलों में ऑलरेडी हमने पहले ध्यान सिखाया है, अभी भी लगे हुए हैं कि जो स्कूल्स में हमने नहीं सिखाया वो स्कूल्स में हम ध्यान सिखाएं। प्लस शाकाहार रैली भी हम कैलकाटा में हमने शुरू कर दी है। अभी पत्री जी के बर्थडे वाले दिन ही हमने शाकाहार, एक छोटा सा शाकाहार रैली का प्रचार प्रसार किया, जो हमारे सदर्न एवेन्यू सफारी पार्क पिरामिड सेंटर के बाहर हमने किया। और फ्रेंड्स, इसे भी हम आगे हर महीने, हमारी प्लानिंग है कि हर महीने हम एक रैली ज़रूर करेंगे। और ध्यान के सेशंस हमारे हर पूर्णिमा में हम 3 घंटे का ध्यान रखते हैं, जहां पर हम सेंटर में सभी मेंबर्स मिलते हैं, जुड़ते हैं और एकत्रित होकर ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं। एंड पिरामिड, काफ़ी सारे छोटे छोटे पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं माधवी मैडम ने कैलकाटा में ऑलरेडी। अब हमारी आगे की प्लानिंग भी ऑलरेडी एक बहुत बड़े पिरामिड की चल रही है, जो कि अवश्य पूरी होगी। ऑलरेडी हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने उसके लिए नींव रख दी है और उन्होंने ऑलरेडी 10 एकड़ की ज़मीन के लिए ऑलरेडी कहा है कि कैलकाटा में एक बड़ा आश्रम बनाना है। बेंगलोर में ही उन्होंने इस बार अप्रैल मंथ में उन्होंने कहा है कि हमें 10 एकड़ ज़मीन चाहिए कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में एक आश्रम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पीएमसी आसाम चैनल है, जो आसामीज़ में वहाँ के जो मास्टर्स हैं, प्रमिला अग्रवाल, ब्यूटी देवी, जो बहुत बखूबी से अपने आसामीज़ चैनल को हैंडल कर रही है। आसाम में भी आसामीज़ लैंग्वेज में प्लस हिंदी लैंग्वेज में प्रसार कर रही है वहाँ पर। फ्रेंड्स, वहाँ पे अभी हमें और भी काम करना है। हमने जस्ट एक बूंद है सागर में। तो जैसे हमेशा सर ने कहा है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो हम जिस तरह से संभव हो पाता है, हमारी टीम एक स्टेप
आगे बढ़ती है और जिस तरह से भी संभव हो पाता है अपने कार्य को हम प्रचार के कार्य को आगे लेकर जाते हैं। कोशिश पूरी यही है कि जितना हो सके करें फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा क्या कहूँ मैं और हमारी जो मैगज़ीन्स है बंगाली, पत्री सर की जितनी भी बुक्स हैं हिंदी में, हमारी सीनियर मोस्ट मास्टर हैदराबाद से जो पी उमा रानी हैं वो हिंदी में सारे ट्रांसलेशन करती हैं, प्लस माधवी मैडम उनको प्रिंट करवाती है। बंगाली में भी हमारी टीम जो ट्रांसलेशन करती है पत्री सर की बुक्स, वो हमारे सब प्रिंटिंग का कार्यभार माधवी मैडम संभालती हैं यहाँ पर। तो जिनको भी हिंदी में एंड बंगालीज़ में जो बुक्स चाहिए सर के, तो प्लीज़ आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे जो पीएमसी आसाम चैनल, पीएमसी बिहार चैनल, पीएमसी झारखंड, पीएमसी बंगाली, पीएमसी त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा स्टेट है उसमें हमारे मास्टर संदीप रॉय, अगर वो यहाँ कहीं है तो प्लीज़ आ जाए स्टेज में। मैंने बहुत कॉल करने की कोशिश की है उनको, वो यहीं पर ही मौजूद है करताल आश्रम में, तो लेकिन मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो प्लीज़ अगर आप यहीं कहीं हैं तो आ जाए स्टेज के पास और अपने अनुभवों को शेयर करें। त्रिपुरा में वो बहुत ज़ोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं शाकाहार के बारे में। पिरामिड, उनके खुद के घर पे उन्होंने पिरामिड सेंटर बनाया है एंड लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं वहाँ पर त्रिपुरा स्टेट में। उनका पीएमसी त्रिपुरा चैनल है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप जिनको भी जानते हैं तो इन भाषाओं के बारे में ज़रूर आप हेल्प करें हमें, उन्हें आगे ले जाने में, अपने लोगों को कनेक्ट करने में। जिस तरह से सर का विज़न था कि हर भाषा में हमें पहुंचना है, हर भाषा में ध्यान प्रचार प्रसार होना है और हर स्टेट के मास्टर को अपने अपने स्टेट में कार्यभार संभालना है दोस्तों। तो हर स्टेट के जिस तरह सर कहते हैं, हर एक हाथ में आनापानासती ध्यान होना चाहिए, हर एक के अंदर शाकाहार जागरूकता होनी चाहिए। सर का एकमात्र लक्ष्य ही है शाकाहार जगत। शाकाहार जगत स्थापित करने के लिए ही सर ने आनापानासती ध्यान शुरू किया। आनापानासती ध्यान से बंगाल में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने आप सहजता से, सरलता से शाकाहार में रूपांतरित हो गए। वो नॉन वेजिटेरियन खाते थे लेकिन उनको शुरू में छोड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने कहा कि नहीं, आप ध्यान करो, ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली आपका मांसाहार बंद हो जाएगा। जब वो ध्यान करने लग गए 40 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने अनुभव किया कि वो मांसाहार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, वो शाकाहार में रूपांतरित हो गए। उनको गंध आती थी, उनको उल्टियाँ होती थी, तो उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया फ्रेंड्स। तो काफ़ी ऐसे मास्टर्स हैं हमारे कलकत्ता में जो पूरी तरह से शाकाहार में रूपांतरित हो चुके हैं। तो एकमात्र आनापानासती ध्यान से, सहजता से, सरलता से पूरे विश्व को, पूरे जगत को हम शाकाहार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ध्यान ही हमें उनको सिखाना है, ध्यान की मशाल हमें उनके हाथ में देनी है, बस इतना ही करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। ये सर का पसंदीदा गाना था, मैंने गाया था जूम सेशन में। सर बहुत खुश हुए थे। ये बंगाली सॉन्ग है। ममो चित्ते नीते नीते के जे नाचे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई। ममो चित्ते नीते नीते के जे नाचे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई। तारी संगे किमी दंगे बाजे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई। हासि कान्ना हीरा पान्ना दोले भाले कापे छंदे भालो मंदे ताले ताले। हासि कान्ना हीरा पान्ना दोले भाले कापे छंदे भालो मंदे दोले भाले। नाचे जन्म नाचे मृत्यु पाछे पाछे की आनंद दिवारात्रि नाचे मुक्ति नाचे बंद। तारी संगे की तरंगे छुटी बंगे पाछे पाछे ताता थोई थोई ताता थोई थोई ताता थोई थोई। धन्यवाद। ये गाना सुन के सर ने बोला था कि जब भी तुमको देखेंगे तुमको ताता थोई थोई बोलेंगे। थैंक यू।